अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना कोलार ट्रू न्यूज़ चैनल। आज बरोज़ जुम्मा कोलार शहनशाह नगर पार्क में पार्क कमेटी वालों की तरफ से 75 यानी कि 70वां यौम जमहूरिया का प्रोग्राम मनाया गया। वहाँ पर हिंदुस्तान का परचम भी लहराए गए। तो आप देख सकते हैं आपके अपने इस कोलार ट्रू न्यूज़ चैनल के ज़रिए वहाँ पर यौम जमहूरिया के बारे में मौलाना ने ख़िताब करते हुए इस सारे प्रोग्राम में वहाँ पर अंजुमन के नायब सदर डॉक्टर मुस्तफ़ा जी बख्श, गोल्ड बख्श, नसरुल्लाह, नवाज़ पाशा, नुसरत, सुहेल भाई, अयूब ख़ान, सैयद मुसव्विर, पीओ असलम और दीगर कई नौजवानों ने मिलकर हिंदुस्तान का परचम लहराने के बाद वहाँ पर यौम जमहूरिया के बारे में वहाँ पर स्कूल के बच्चों ने तकरीर करते हुए और जो बच्चे वहाँ पर आए हुए थे तकरीर करने के बाद उनको डॉक्टर मुस्तफ़ा और दीगर अहबाब के हाथ से उनको मेमेंटो भी पेश करते हुए आप देख सकते हैं आपके अपने इस कोलार ट्रू न्यूज़ चैनल के ज़रिए। ये सारे आप जो तस्वीरात देख रहे हैं कोलार शहनशाह नगर नज़द श्रीनिवास गौड़ा एमएलए के घर के पास मौजूद पार्क की कमेटी की तरफ से इसी पार्क में सवेरे वहाँ पर जो गश्त करने आते हैं यानी कि एक्सरसाइज करने आते हैं उन्होंने मिलकर इस सारा यौम जमहूरिया का इजलास यानी कि प्रोग्राम को मुनक़्क़द किया गया और वहाँ पर हिंदुस्तान का परचम बड़े जोश व खरोश से लहराया गया और इसी के बारे में बच्चे तकरीर करते हुए आप देख सकते हैं आपके अपने इस कोलार ट्रू न्यूज़ चैनल के ज़रिए। अगर आपको तस्वीरात और वीडियो पसंद आए तो आपके दोस्तों अहबाब के मोबाइल तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया। ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಚಕ್ರ, ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ, ಪರಮವೀರ ಚಕ್ರ ಇಂದು ಮುಂತಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗಣರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತವು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸಮಾಜವಾದ ಜಾತ್ಯತೀತ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಗಣರಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಮಾನತೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಸಂವಿಧಾನವು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಪುಟ್ಟ ಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಂತೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಜನವರಿ 26ರಂದು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ದಿನವಿದು. ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನ ಹೊಂದಿದೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ 1950ರ ಜನವರಿ 26ರಂದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಗಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಕರಡು ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಶ್ರಮ ಅಪಾರ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದರು ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ಏಕೆ ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನಾವಿಕನಿಲ್ಲದೆ ಹಡಗು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಮುಳುಗಬಹುದು ಕೂಡ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ನೀತಿ ನಿಯಮ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನುಗಳ ಎಂಬ ಚೌಕಟ್ಟು ಇದ್ದರೆ ಶಿಸ್ತು ಎಂಬುದು ಬರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದವರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗಿರಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರಲಿ, ಯಾರು ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಮೀರಿಸಿ ನಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಮೂಲ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕೈಬರಹದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಪಥದಲ್ಲಿ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ 8 ಅನುಚ್ಛೇದಗಳು ಹಾಗೂ 22 ಭಾಗಗಳು ಹಾಗೂ 395 ವಿಧಿಗಳು ಇದ್ದವು. ಆ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 105 ಬಾರಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ 12 ಅನುಚ್ಛೇದಗಳು ಹಾಗೂ
25 ಭಾಗಗಳು ಹಾಗೂ 470 ವಿಧಿಗಳು ಇದ್ದವು. ಭಾರತವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದ ದಿನದಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆಲೆಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಪಥದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಂದರೆ 25 ಜನವರಿಯಂದು ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವು. ಸಂವಿಧಾನ ನಮಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಂತೆಯೇ ನಾವುಗಳ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಿದೆ. ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ ದೇಶ ಸೇವೆಗೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಿರಬೇಕಿದೆ. जय हिंद, जय भारत माते। बाहर फराज के मुझको सिखा गया है जुनून, खुदा मुझे नफ़्स जिब्राइल दे जो कहूँ, सितारा क्या मेरी तकदीर की खबर देगा, वो खुद फरा की अफलाक में है फारज़ू। हयात क्या है ख्यालों नजर की मंसूबी, खुदी की मौत है अंदेशा है गोनागू। अजब मजा है मुझे लज्जतें खुदी देकर, वो चाहते हैं कि मैं अपने आप में न बनूं। Every year on this day, I am proud to be an Indian. Some like Sunday, some like Monday. I like one day, that is Republic Day. Once again, wishing you all happy returns of the day. Jai Hind, Jai Bharat. उर्दू जबान में अपने ख्यालात का इजहार किया। में तमाम बच्चों को हमारे वर्ल्ड के काउंसलर शामिर साहब की तरफ से बच्चों को और तमाम हाजिरीन से तालियों की गुजारिश की जाती है। तालियों के साथ बच्चों की हौसला अफजाई के लिए तमाम हाजिरीन से गुजारिश है। और इसके बाद यहाँ पर मौजूद बहुत मेहनत जबोगी मोहम्मद मुस्तफा साहब की सबसे पहले तहनीत पेश की जाएगी। और उनको तहनीत पेश की जा रही है। चेयरमैन साहब इधर की उधर क्या शामिर पाशा की भी इज्जत अफजाई की जाएगी और इनकी खिदमत में शाल और गुलकशी की जाएगी। कबूल फरमाएं। साहब से गुजारिश करता हूँ कि पार्क कमेटी की जानिब से आज का ये यौम जमहूरिया 26 जनवरी सबको मुबारक हो। आज का ये दिन हम इतने आसानी से 1-2 घंटे में तैयार होकर बिल्कुल आराम से मना रहे हैं, लेकिन ये हासिल करने के लिए हमारे बड़ों ने बहुत सारा खून बहाया है। बहुत सारे उलमाए कराम ने फांसी पर लटका है। इसमें हर कौम का लोग कुर्बानी दिया है। ये कुर्बानी की वजह से हमको आज ये दिन विरासत में मिला है। ये विरासत को हम संभाल के चलेंगे। इस कानून को हम अपने अहाते में लेकर चलेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा जो फ्यूचर है, हमारे जो बच्चे हैं, उनका भी हम
एक अच्छी तरह से उनका एक मुकद्दर बना सकेंगे। वरना कानून के खिलाफ जाने पर कोई चीज अपना सपोर्ट में नहीं रहेगी। मैं सबसे गुजारिश करूंगा, हम पहले पाक साफी का ख्याल रखें, मोहल्लों में भी पाक साफी का ख्याल रखें, अपने दिलों को भी शांति और पाक साफ बनाएं। हम यहाँ पर सिर्फ ये कौम जीना नहीं है, हम सबके साथ मिलकर जीना है। इसलिए हम जुड़ने की कोशिश करें और जुड़कर रहने की कोशिश करें। मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ। पहली बात है पाक की साफी, दूसरा दिलों को पाक साफ कर हम सब एक होकर जुड़े। और तमाम हाजिरीन को मैं पार्क कमेटी के जानिब से शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि इस मौके पर आप तमाम अपना कीमती वक्त देकर यहाँ पर आए। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं पार्क कमेटी वालों को भी ये गुजारिश कर रहा हूँ, जो आज प्रोग्राम इन्होंने किया है, हर साल में 2 बार 15 अगस्त 26 जनवरी को यह प्रोग्राम मुंतकिद होता है। इसमें काफी मेहनतें रहती हैं। मैं पार्क कमेटी वालों को भी और आगे अच्छा करने की गुजारिश भी कर रहा हूँ और इनका शुक्रगुजार हूँ। बस मेरी बात खत्म करते हुए मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कर रहे हैं इस मुल्क के आइन को मानते हुए, यहाँ की इंसानियत को मानते हुए हम जिंदगी बसर करेंगे। तो तमाम भाइयों से बहनों से गुजारिश करता हूँ कि अपने हाथ को आगे बढ़ाएं। और ये अहद है, हम अपने आप से अहद करते हैं जो हमारा हिंदुस्तान का कानून कहता है। और तमाम से गुजारिश है कि तमाम लोग अपने हाथ को सामने करें। अवाम मुतानियत वो संजीदगी से अज़म करते हैं कि हम भारत को एक मुक़्तदर, समाजवादी, गैर मजहबी, अवामी, जमहूरी बनाएं और इसके तमाम शहरियों के लिए हासिल करें। इंसाफ, समाजी, मुआशी और सियासी आजादी, ख्याल, इजहार, अकीदा, दीन और इबादत, मसावत, बाएतबार, हैसियत और मौका, और इन सब में इख्वत को तरक्की देंगे, जिससे फर्द की अजमत और कौम की इत्तेहाद और सियासी ताकीद हो। अपने आइन असेंबली में आज 26 नवंबर 1950 ये आइन ज़राए हिज़्ब इख्तियार करते हैं और वाज़े करते हैं और अपने आप पर नाफिज करते हैं। जय हिंद। माथे पे